اس دوران ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا جو کافی بڑی صورت اختیار کر گیا۔ اسے اور اس کے چند کلاس فیلوز کو یونیورسٹی کے ایک دوسرے گروپ نے اپروچ کیا۔ وہ مانچسٹر میں اپنی نئی کلاسز کے شروع ہونے کے سلسلے میں ایک پارٹی کا اہتمام کر رکھے تھے اور پارٹی کے انتظامات کے لیے انہوں نے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ہی موقع دیا تھا تاکہ وہ چند گھنٹوں میں کچھ زیادہ پونڈز کما سکیں۔ اس کے کلاس فیلوز نے ہاں کہا تھا، اس نے بھی ہاں کہہ دیا۔ انہیں پارٹی کے سارے انتظامات دیکھنے تھے، ڈیکوریشن سے لے کر سرونگ تک۔ پارٹی ان میں سے کسی ایک اسٹوڈنٹ کے گھر کے لان میں تھی۔ سر شام ہی ان سب نے پارٹی کے لیے ابتدائی تیاریاں مکمل کر لی۔ باقی ان کا کام میزوں پر کھانے کی اشیاء رکھنا تھا جو ذرا ہٹ کر الگ سے لگی تھیں۔ تم شکل سے بہت زیادہ پاکستانی لگتی ہو۔ مائیکل اور اس کے دوسرے دوست اسے تشویش سے ایسے دیکھنے لگے کہ اسے تشویش ہونے لگی۔ وہ سب پارٹی کے انتظامات دیکھنے آئے تھے۔ میں ہوں بھی پاکستانی، وہ برا مان گئی۔ نہیں، ہمارا مطلب وہ سب ذرا ڈرتے ہیں، بلکہ ذرا سے کچھ زیادہ ہی ڈرتے ہیں۔ کون؟ آج کی پارٹی میں آنے والے زیادہ تر اسٹوڈنٹس۔ وہ کافی زیادہ گول مول سی باتیں کر رہا تھا۔ انہیں پاکستان فوبیا ہے کیا؟ نہیں، شاید ہاں۔ یہ اخبارات، ٹی وی، میڈیا دماغ خراب کر دیتے ہیں۔ برا نہ مانو پلیز، وہ کمزور عقیدے کے لوگ ہیں۔ جو کچھ اخبارات میں کہا جاتا ہے اس پر یقین کر لیتے ہیں، اور تم ہو بھی مسلم۔ پلیز ایسے برا نہ مانو۔ دھماکوں سے بہت ڈر لگتا ہے انہیں۔ دھماکوں سے ڈر لگتا ہے؟ میں مسلم ہوں، آخر کیا مطلب ہے ان سب باتوں کا؟ مجھے بھی دھماکوں سے ڈر لگتا ہے، لیکن میں تو تمہیں نہیں بتا رہی۔ وہ ان کی ایک بات بھی نہیں سمجھ سکی۔ دیکھا، تم برا مان گئی، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ یہاں کون سا دھماکہ ہونے جا رہا ہے؟ مطلب کچھ ہوگا ہی نہیں تو ڈرنا کیسا؟ مائیکل نے اچھی اداکاری کی یہ کہتے، کچھ ہونے کا خطرہ ہے یہاں، کوئی بلاسٹ؟ تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ میں تمہیں صرف بتا رہا ہوں، ان میں سے زیادہ تر کے انکل اور فادرز پولیس میں ہیں، بس ایسے ہی بتا رہا ہوں۔ ایسے پریشان نہ ہو۔ امرہ کا سر چکرانے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا سمجھانا چاہ رہے ہو مجھے؟ ایسے ہی تم سے باتیں شیئر کر رہے ہیں۔ ایسے باتیں شیئر کرتے ہیں؟ تم سب مجھے شک سے گھور رہے ہو۔ تمہیں لگتا ہے میں یہاں دھماکہ کروں گی؟ میں؟ کیا مذاق ہے یہ؟ بلکہ کیا بکواس ہے یہ؟ اسے غصہ آ گیا۔ ایسی تو کوئی بات ہم نے نہیں کی۔ تم کیا سے کیا سوچ رہی ہو؟ ہاں، سیدھے سیدھے سے یہ بات نہیں کی، پر جو کی ہے ان کے مطلب خوفناک ہے۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا تو ابھی سے رنگ اڑ گیا۔ ابھی سے مطلب؟ اس کا رنگ واقعی میں اڑ گیا تھا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ مطلب ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں۔ ایسی خطرناک باتیں ہی کرتے ہو تم سب۔ مجھے تمہاری باتیں پسند نہیں آئیں۔ میں چلے جاؤں یا کام کروں؟ ویسے پیسے میں پورے لوں گی۔ نہیں نہیں، تم کام کرو، جانا نہیں۔ وہ مسکرانے لگی۔ وہ اپنے کام میں لگ گئی اور اندر ہی اندر سہم بھی گئی، یعنی اگر ذرا سی بھی کوئی گڑبڑ ہو گئی تو یہ لوگ اس پر صاف صاف الزام لگا دیں گے، پولیس۔ اور پھر لان میں ایک طرف ذرا اونچائی پر ڈی جے کا انتظام کیا گیا تھا، جیسے کلب میں ہوتا ہے۔ اندھیرا گہرا ہوا تو ٹویسٹ لائٹس نے اور بڑھا دیا۔ انہوں نے ڈی جے ساؤنڈ چیک کیا، جو خطرناک حد تک تیز تھا۔ نیلی، پیلی، ہری، لال لائٹس حرکت کرنے لگی، سب آگے آنے لگے۔ انہوں نے میزوں پر پہلے سے ہی سافٹ ڈرنکس رکھ دی تھیں۔ 2 گھنٹے بعد انہیں کھانے کی چیزیں رکھنی تھیں۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، دوسرا بھی گزر گیا۔ ان سب نے مل کر میزوں پر کھانے کی اشیاء رکھ دی۔ ڈی جے نسبتاً ہلکی آواز میں میوزک کے ساتھ تجربات کرتا رہا، جو امرہ کو کافی پسند آ رہے تھے۔ وہ گلاسوں کی ٹرے رکھنے جا رہی تھی کہ مائیکل نے اسے آواز دی۔ وہ اس کے قریب جا رہی تھی کہ ایک زوردار دہشت ناک دھماکہ ہوا، اتنا زوردار کہ کانوں کے پردے پھٹنے کے قریب ہو گئے۔ امرہ بری طرح سے ڈر کر لڑک کر گری، خون کے چھینٹے اڑے اور خون کی بدبو پھیل گئی۔ ساتھ ہی شیشے کے ٹوٹنے اور انسانی چیخوں کی آوازیں بھی آئیں۔ میز اور کرسیاں ایسے اڑ کر گریں جیسے
उनके नीचे पंखे लगे हों। सब जमीन पर गिर गए। फिर पूरे 15 सेकंड तक सन्नाटा रहा। अमरा जिंदगी में कभी इतनी खौफजदा नहीं हुई थी जितनी उस धमाके से हो गई थी। वो बामुश्किल उठी और आसपास नजर दौड़ाने की कोशिश की। दूसरे लोग भी कुछ उठ चुके थे, कुछ उठ रहे थे। उनके चेहरे और हाथ जख्मी थे, खून रस रहा था और कितना ही खून वहाँ आसपास फैल रहा था। ये एक खौफनाक मंजर था, इसलिए नहीं कि वहाँ धमाका हुआ था, बल्कि इसलिए कि वो सब उसे घूर रहे थे। उसने जीन्स पर लंबी कमीज पहन रखी थी और माइकल ने ही कहा था कि सर ढांप कर काम करना है, तो उसने स्कार्फ को सर पर अच्छी तरह से ओढ़ लिया था। अमरा को पहले ये सिर्फ अपना वहम लगा कि वो सब टकटकी बांधे उसे देख रहे हैं। फिर उसने जरा गर्दन घुमाई तो वहम लगने वाला ख्याल 100% खौफ में बदल गया। वो सब अपनी अपनी जगह पर जमे उसे देख रहे थे, घूर रहे थे। उनमें से एक ने कपकपाते होंठों के साथ उंगली उठाकर उसकी तरफ इशारा किया। तुमने किया है ना ये? उसकी इतनी सी बात से जैसे किसी ने उसके सर पर दूसरा धमाका कर दिया हो। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसके ज़हन में 9/11, लंदन ट्रेन धमाके, अखबारात, टीवी चैनल्स की सभी खबरें, डॉक्यूमेंट्रीज गड़बड़ होकर चकराने लगी। दहशतगर्द यू डिड दिस, दहशतगर्द यू। उसका सर चकराने लगा। दहशत उसके चेहरे पर नजर आने लगी। मुझे नहीं मालूम। वो अटक अटक कर होंठ हिलाने लगी। आवाज उसके होंठों से निकल ही नहीं रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सारी जिंदगी बोल ही नहीं सकेगी। और ठीक उसी दौरान एक और धमाका हुआ, वैसे ही जोरदार। उन सब ने अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली। फिर उसे वहां मौजूद बहुत सारी चीजें गिरी। शीशे के छोटे टुकड़ों की एक बौछार आंधी की तरह आई। खून के छींटे उड़े। पीछे खड़े बहुत से लड़के लड़कियां गिर गए और कराहने लगे। उस तरफ काफी अंधेरा था, लेकिन उनकी चीखें और कराहें सुनी जा सकती थी। इस बार अमरा गिरी नहीं, खड़ी ही रही और काफी दहशतनाक अंदाज लिए खड़ी रही। एकदम से फजा में पुलिस सायरन और फायर ब्रिगेड सायरन की आवाजें गूंजी। पीछे कहीं से जोरदार आग के भड़क उठने की अलामात नजर आ रही थी और आग की लपेटें खूंखार आवाजें निकाल रखी थी। उसने एक बम अपने साथ भी बांध रखा है। किसी एक ने चिल्लाकर उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा। सब सहम को दूर दूर होने लगे। अब वो सब जख्मी नजर आ रहे थे और खून तेजी से उनके जख्मों से रस रहा था। या अल्लाह, अमरा करा उठी। उसे उस आखिरी बात से हद दर्जा अज़े पहुंची। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब ऐसे ही हो रहा है जैसे उसे नजर आ रहा है। पुलिस सायरन की आवाज करीब आती जा रही थी। उसकी किस्मत खराब कि मैनचेस्टर में एक स्टूडेंट पार्टी में धमाके हो गए और इस जगह अमरा मौजूद थी। खड़े खड़े उसने कल के अखबारात में अपनी तस्वीर देख ली, टीवी की रिपोर्टिंग का अंदाजा कर लिया, अदालत में खुद पर केस चलते देख लिया। उसके हक में चंद हजार मुस्लिम रैली निकाल रहे हैं और अदालत अपना फैसला सुना रही है। उसके घर वाले उसे लानत मलामत कर रहे हैं और मासूम होते हुए भी उसे यूरोपियन मीडिया दहशतगर्द साबित कर रहा है। उसकी पढ़ाई का क्या होगा, उसका क्या होगा? वो तो मर जाएगी। और ठीक उसी दौरान एक और धमाका हुआ और वो हलक के बल चिल्लाने लगी, पागलों की तरह डरकर, आवाज बाख्ता होकर। मैंने कुछ नहीं किया। एक सेकंड में वो ये बात 20 बार कह गई, साथ चलाती रही। 400-500 स्टूडेंट्स का ग्रुप इधर उधर फैला उसे देखता रहा। सारे पार्टी का हशर हो गया था। वो पागल हो जाने के करीब थी। सुन रहे हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई, अपनी सारी हिम्मत जमा करके, पूरा जोर लगाकर। वो सब वैसे ही खड़े रहे जैसे कोई थिएटर शो खड़े होकर देख रहे हों। तो और किसने किया है ये? कोई एक बोला। अमरा ने बेयकीनी से बोलने वाले की तरफ देखा और गुस्से से दीवानी होने लगी। मुझे क्या पता किसने किया है ये? क्यों, तुम सभी करते हो ना ये? पहले वाला ही बोला, जिसकी नाक और पेशानी से खून बहकर गर्दन तक आ चुका था।
इस बात ने अमरहा की अज़ियत में बेपनाह इजाफा कर दिया कि उसका दिल चाहा काश उसके हाथ एक बम वाकई में ही आ जाए और वो दहशतगर्द बन ही जाए। हम करते हैं ये, कौन कहता है ये? उसमें पागलपने के आसार बढ़ने लगे। सबको मालूम है, अखबारात, टीवी, तुम्हारा मीडिया, तुम्हारे टीवी चैनल्स, अखबारात झूठ बोलते हैं। पागल हो तुम सब, पागल बनाते हो दुनिया को। हम दहशतगर्द हैं क्या तुम? हम नहीं, तुम हो। तुमने दुनिया में फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा दिया है। तुम हो खराबी की जड़। इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मैं कि तुम मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे अंदर करवा दो। मैं तुम सबको मार डालूंगी। दहशतगर्द नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ। कैसे नाम ले सकते हो तुम मेरा? कैसे? मैं क्यों करूँगी ये सब? इतने सारे अजनबी चेहरे उसके सामने थे और वो सब उसे ऐसी नजरों से देख रहे थे। उसका डूब मरने को दिल चाहा और दिल चाहा वो खुद समेत सबको आग लगा दे। और खुद को आग उसने ऐसे लगानी शुरू की कि एकदम सब्जी पर बैठकर ऊंची आवाज से रोने लगी। ऊंची, बेहद ऊंची। दुख से उसका दिल फट जाने को था। कैसे उस पर इल्जाम लगा दिया गया था। एक मासूम यूनी पढ़ने आने वाले स्टूडेंट पर इतनी आसानी और संगदिली से ऐसे कैसे किया जा सकता था। पुलिस और फायर ब्रिगेड सायरन बंद हो गए। पार्टी में अब सिर्फ उसके रोने की आवाज आ रही थी। वो सब जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रह गए। अब वो ऐसे खड़े थे जैसे थिएटर तो खत्म हुआ, लो अब हॉरर मूवी शुरू हुई। मंजर अपनी मिसाल में बेमिसाल हो गया और उसके रोने ने उन सब पर दिक्कत से तारी कर दी। उसके रोने में सिसकियाँ शामिल हुई और फिर हिचकियाँ। उसके माजी के सभी दुख उसके सामने आकर खड़े हो गए और उससे बताने लगे कि इतनी जल्दी उसे सुख मिलने वाला है न रास आने वाला है। किसी में जुर्रत ना हुई कि कुछ बोल सके या उसके पास जा सके। ये सब तुम्हारे साथ अमली मजाक कर रहे थे, यानी प्रैंक। आवाज कुछ जानी पहचानी थी। उसने गर्दन उठाकर आवाज की सिमत देखा। उससे जरा दूर अंधेरे में एक कुर्सी पर आलियान बैठा कॉकटेल से लुत्फानंदोज हो रहा था। उसने ये बात इतने सुकून से की जैसे वो खामोशी से बैठा ओपरा देखता रहा हो और ऐसे खौफनाक रोने ने उसका मजा खराब कर दिया हो। और अब शिकायतन वो कहता हो कि बराए मेहरबानी ये टिकट के पैसे वापस किए जाएं या ये बेहुदा खेल खत्म किया जाए। अमली मजाक उसे समझने में वक्त लगा। फिर जब वो समझ गई तो गजबनाक गुस्से से लरसती उठकर खड़ी हो गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस हद तक जाकर भी कोई अमली मजाक किया जा सकता है। उसने कभी ये सब देखा था न सुना था, बल्कि उसके गुमान में भी नहीं था कि ऐसा मजाक हो भी सकता है। सब कुछ इतना मुकम्मल और जामिया था कि उसने इस बारे में सोचा ही नहीं और ना वक्त मिला कि वो गौर करती। ये सब सीनियर्स हैं और जूनियर्स के साथ शट अप। उसने धार कर उंगली उठाकर आलियान से कहा। फिर वही उंगली लहराकर उसने वही शट अप पूरी कुव्वत से चिल्लाकर उन सब से कहा, बकवास बंद रखो तुम सब अपनी। उसने कहा जबकि वो तो बकवास कर ही नहीं रहे थे। बेचारे खामोश खड़े उस रोता सुन रहे थे और कोई एक तो खुद भी रो देने को था कि ये उनसे क्या हो गया। तुम लोग अंग्रेज, गोरे, दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले, जो जी में आए करने वाले, हमें क्या समझ रखा है? जब जी में आया मजाक बना लिया हमारा, जब जी में आया गुलाम बना लिया। बोलो क्या समझ रखा है हमें? तैश की शिद्दत से अमरहा को समझ नहीं आए कि उन पर फटकार का आगाज कहाँ से करे और किन लफ्जों का इस्तेमाल करे कि ये सब डूब ही मरे। पहले हमारे मुल्क में आए, हम पर राज किया, हमारी दौलत लूट कर ले गए, कोहे नूर उठाकर यहाँ ले आए चोर, और हमारी तजलील करते हो अब और हमें दहशतगर्द बना रखे हो। हमसे हसद करते हो कि हम जिंदगी में आगे ना निकल जाएं, तुम सबसे आगे ना निकल जाएं। गाली और गिनती के लिए हर इंसान अपनी मादरी जबान इस्तेमाल करता है कि मिस्ताक वो रवानी से चीख चलाकर उर्दू में उन पर बरस रही थी। आलियान साथ साथ अंग्रेजी में तर्जमा करता जा रहा था। तुम अंग्रेज, गोरे हमारे मुल्क में आए, हमने तुम्हारी मेजबानी की, तुम्हें बादशाह बनाया, जाते हुए तुम्हें कोहे नूर तोहफे में दिया।
आलियान अपनी मर्जी का तर्जमा कर रहा था, यानी उसी और भड़का रहा था। अमराह के पास आलियान से निपटने का वक्त नहीं था। तुम लोग खुद को क्या समझते हो? क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ, बहुत बड़ी तोप कौम हो तुम नेक, शरीफ, पढ़े लिखे, और हम जाहिल, गंवार, दहशतगर्द। मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। तुम और तुम्हारी गंदी सियासत ने मिलकर हमें दहशतगर्द बना दिया है। अमराह का गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था। उसके उस जलाली आलम में किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोल सके या उसके करीब आ सके। आलियान खामोश हो गया। उसने कोई तर्जमा न किया। ट्रांसलेशन प्लीज, किसी कोने से आवाज आई। मजाक करने के लिए तुम्हें यही मजाक मिला था? खुद तुमने गवांतानामो में क्या किया? वो अमेरिकी थे, आलियान बोला। वो संजीदा हो चुका था अब। वो जालिम थे, और जालिम किसी कौम से नहीं होता, और ये सब भी जालिम है। उसने हाथ लहरा कर कहा। आंसुओं का एक नया दरिया उसकी आंखों से बहने की तैयारी करने लगा। उसका ये दुख खुदा जाने अब कब जाएगा कि उसके साथ ये सब हुआ। ट्रांसलेशन प्लीज, आवाज फिर आई। अमरा ने एक कह आलूद नजर सब पर डाली और इस बार इंग्लिश में बोली, इतना घटिया मजाक। इस मजाक से अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता, अगर मैं मर जाती। तुम लोग इतने जालिम हो के मजाक भी ऐसा जालमाना सोचा। तो फिर तुम पर कितने छोटे हो तुम सब। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो और ये सब सीखते हो। गंदे हो तुम, जाहिल। तुमने मेरी बेइज्जती की है। मर जाओ सब के सब तुम। इतने पॉइंट्स तुमने धमाकों पर लगा दिए। अगर वही पॉइंट्स तुम, अब वो उन्हें ठीक ठीक ऐसे शर्मिंदा करने लगी कि रात ही रात वो सब इज्तिमाई खुदकुशी कर लें। कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं लगे, वो तो ऐसे हुए हैं। डीजे ने एक बटन दबाया और एक और धमाका हुआ, यानी वो साउंड छोड़ रहा था। अल्लाह उन्हें नजरे बद से बचाए। किस कदर टैलेंटेड थे वो सब। अमराह ने शदीद गुस्से में अपने करीब ही गिरा हुआ एक गिलास उठाकर ऊपर डीजे की तरफ उछाला। उंगलियां टूट जाए तुम्हारी, बहरे हो जाओ तुम, पुरसकून हो जाओ, काफी हो गया, चलो अब बस करो, आलियान ने नरमी से कहा। अमराह को और गुस्सा आया। उसे उन सब की इज्तिमाई खुदकुशी ही चाहिए, बस। बकवास बंद रखो अपनी। उसकी आवाज डीजे के किए धमाके से ज्यादा धमाका अंगेज थी। उसने एक नजर फिर सब पर डाली। बेइज्जती के एहसास से उसका सारा वजूद झलसने लगा, यानी उन्हें अंदाजा ही नहीं कि वो सब उसके साथ क्या कर बैठे हैं। प्रैंक के नाम पर वो उसे आसमान से नीचे जमीन पर पटक चुके हैं। सब उसी के साथ क्यों? पाकिस्तान में कोई कसर रह गई थी कि जो अब ये पूरी कर रहे थे? जो उसके अपने नहीं कर सकते थे, अब वो गैर कर रहे थे। दुनिया में उसके लिए कहीं कोई सुकून है या नहीं? दुनिया में सब उसे ही दुख देने के लिए पैदा किए गए हैं। इन सब सवालों ने उसके दिल को इतना बोझल कर दिया कि उस पर इंकशाफ हुआ कि वो दुनिया में अपनी छोटी या लंबी उम्र में शायद ही कोई खुशी हासिल कर पाएगी। शायद ही उसे कभी इज्जत का रुतबा दिया जाएगा, और शायद ही कभी वो अपनी जात में बुलंद होकर दुनिया की नजरों में भी बुलंद हो पाएगी। उन इंकशाफात पर जैसा कि यहाँ आने से पहले वो धाड़े मार मार कर रोती ही रही थी, तो वो सभी धाड़े उसके अंदर फिर से जाग उठी। वो घास पर बैठकर घुटनों में मुंह छुपाकर उन सब धाड़ों को आवाज में जगा कर रोने लगी। सबने दूर से ही उसके गिर्द घेरा सा बना लिया। उन सब की रही सही हिम्मत भी जाती रही कि वो शेरनी बनी अमराह के पास आए और उसे चुप ही करवा दे। अमली मजाक था और कुछ ज्यादा ही अमली हो गया था। वो रो रही थी और वह सब शर्मिंदा उसे सुन रखे थे। वो एक दूसरे को देखने लगे कि उस मशरकी लड़की से अब कैसे माजरत करें। आलियान उठा और चलकर उसके करीब आकर बैठ गया। मजाक कुछ ज्यादा ही हो गया। इनकी गलती है, इन्हें माफ कर दो, उसने बहुत दोस्ताना अंदाज में कहा। वो बदस्तूर हिचकियां लेती रही। प्लीज इन्हें माफ कर दो, प्लीज। आलियान डर तो रहा था अंदर ही अंदर कि वो उसकी गर्दन ही न दबोच ले, फिर भी वो कहे बिना रह नहीं सका। उसका रोना ऐसा था कि उसे अपने एक प्यारे की सिसकियां याद आने लगी थी।
ایسے نہ رو پلیز، ہم سب کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے ہم کہا مجھے نہیں، کیونکہ وہ کہہ نہیں سکا، اور امرا نے سالوں تڑپ تڑپ کر چھپ چھپ کر روتی رہی آنکھوں کو اٹھا کر آلیان کو دیکھا، اور آلیان وہیں کا وہیں رہ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ ششتر وقت نے خاموشی چاک کی، اور سنہری قلم نے بلوریں دوات میں ڈوب کر حرف اول محبت کی میم پر نوک رکھ دی۔ ہاں، یہیں سے داستان یارم لکھنے کی ابتدا میں نے کر دی۔ آلیان نے اپنی زندگی میں دو آنکھوں میں اتنی تڑپ، تکلیف، دکھ اور غصہ سمٹا بکھرا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سیاہ مشرقی آنکھیں دیکھی تھیں، ان مشرقی آنکھوں میں تیش و شکوے کے ایسے بادل نہیں دیکھے تھے۔ وہ اسے شکایت سے دیکھ رہی تھی کہ اردو بولنے والا، نام سے مسلمان لگنے والا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ آلیان کی گویائی کو پڑ لگے، اور وہ امرا کی آنکھوں کو استعاروں میں جا اڑے۔ اس کی بھوری آنکھوں نے اس سے بھرپور شکایت کی، اسے انہیں ان دو سیاہ آنکھوں کے اتنے قریب نہیں لے جانا چاہیے تھا۔ اب اگر وہ ایسا کر چکا ہے تو اس کا انجام اسے ہی بھگتنا ہوگا اکیلے۔ عشق جو اسرار اعظم ہے، اس نے اپنے جادوئی دریچے سعادت مندی سے آلیان کے لیے کھول دیے، اور اپنی دھرتی پر اس کی آمد کی چاپ کو احترام سے سلام پیش کیا۔ پھر پہلے راز کی رونمائی کے لیے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی سماعتوں کو اپنی گویائی کے قریب کیا۔ آلیان کو یہ یاد کرنے میں وقت لگا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ اسے دشواری کا سامنا رہا اپنی آنکھوں کو آنسوؤں کے پانیوں میں غرقاب ان آنکھوں سے ہٹانے میں۔ اتنے لوگوں میں وہ ایک اس کے ساتھ اکیلا رہ گیا، اور ایسی تنہائی پر وہ نازا ہوا۔ کچھ دیر گزری، وہ اٹھ کر کھڑا سا ہوا اور 2 قدم پیچھے کو چلا، لیکن پھر سے جیسے کہ یہ کرنا اب ممکن نہیں۔ وہ واپس اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے خود کو اس گرفت میں گرفتار پایا جس کے بعد خود پر سے سارے اختیار اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اختیارات کسی اور کے قبضے میں دے دیے جاتے ہیں۔ گویائی کے ذہن سے لگی اس کی سماعتوں نے اس کے دل پر نقش اتارنے شروع کر دیے۔ پہلا نقش امرا ہے، اور پھر دوسرے نقش کی ضرورت نہیں رہی۔ ماسٹر بالے کلارن پر بسنت بہار بجا رکھے ہیں، اور رجنی تک پور کی گلیوں میں دیوانہ وار بھاگتی بسنت بہار کی اور کھینچی چلی آ رہی ہے۔